Hello everyone, welcome to our podcast. I am your host Shreya Rajri from BCA 4th semester IIBM. I'm really excited about today's episode because it's a part of our college effort to focus on something that truly matters, our mental health and well-being. क्योंकि जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं तो हम अच्छे से कोई भी काम कर नहीं पाते हैं. That's why today we are going to talk about how to take care to your mental health, and we are also going to break some of the common myths around it. And to guide us with this conversation, we have with us Shivangi Singh ma'am. She is our college mental health counselor. She supports students with the challenges they are facing to focus on their career and studies. So welcome ma'am, it's so good to have you here. Thank you, and I'm really glad to be here and excited to connect our students through this podcast. Okay, so ma'am, let's begin with something simple. Could you please tell us your role in this college and the kind of support you offer to students? Okay, thank you. Basically, I'm a mental health professional. So as a counselor, my role is to empower the students emotionally and psychologically so that they strive with their academics and in their personal and professional life. I help them to deal with stress, anxiety, and their daily life issues. And apart from that, sometimes I just listen to them because I personally believe active listening creates magic. क्योंकि जब आप लोगों को सुनते हैं तो उन्हें वैल्यूड फील होता है, उन्हें ये फील होता है कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, and that is very very essential for anyone's well-being. So that's really helpful to know ma'am. But even with the support available, बहुत सारे students ऐसे होते हैं who feel nervous and unsure about reaching out. So what do you think about that? That's a great question. There's still stigma around mental health. लोग अभी भी इस बारे में बात नहीं करते हैं और but I'm really thankful to IIBM and ZHI Group of Institution जिसमें कि हम स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं and we are working on it. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो अपने हर तरीके की परेशानियों को खुद से हैंडल कर सकते हैं और ऐसा ना कर पाने की वजह से वो कई बार फॉल्टी बिहेवियरल पैटर्न्स भी डेवलप कर लेते हैं. मैं ये कहना चाहती हूँ कि काउंसलिंग इज नॉट अबाउट वीकनेस, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू कोप बेटर. ये इस बारे में भी है कि आप कैसे खुद के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर इमोशनल वेलबींग. So let's burst a common myth here. हम अक्सर सुनते हैं कि काउंसलिंग जो है is only for the students with big or serious problems. So what would you say to that? Okay, that's one of the biggest myths. To be honest, counseling is for everyone. You don't need a diagnosis to talk to someone. If you're feeling stressed, if you're feeling confused, or you just need clarity, counseling can definitely help you. So ma'am, we live in a world full of notifications, likes, reels and endless updates. So what do you think about that? That how students' mental health is impacting through this? Social media has its own pros and cons. पर हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए इसका यूज़ क्या है. डेफिनेटली हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, हम बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं, पर इसका माइंडफुली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. अगर इसका यूज़ हम माइंडफुली ना करें तो लोगों के मन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजंस डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस के शिकार हो जाते हैं लोग. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, जिसको हम फबिंग बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि इसके वजह से भी लोगों में पुअर कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की समस्या डेवलप होने लगती है, एंड कई बार लोगों को लो सेल्फ वर्थ भी फील होता है. तो हमें ये समझना होगा कि स्क्रीन के पीछे किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये हमें पता नहीं है. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स? सो आई वुड से protect your free time. So there's one more thing most of us felt but never talk about it. FOMO, the fear of missing out.
So why is it so common these days, and how these students can manage it better? FOMO happens when we feel someone else is achieving more, doing more, and having more fun. और ये कई बार इसलिए भी लोगों के साथ होता है क्योंकि वो सोशल मीडिया के यूजेज की वजह से इंटेंसिफाई हो जाता है. हमें थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है. मतलब अगर हम इससे डील करना चाहते हैं, इसे अगर हम निकलना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है. हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हम पैसिव स्क्रॉलिंग जो कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है. हम अपने लेन में चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए. हमें थोड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है ताकि इस डर से हम बचे रह सकें और अपने काम पर फोकस भी हमारा ज़्यादा बढ़ सके. क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई करते हैं और कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन्हें पार्टिसिपेट करना होता है. तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन यानी कि जो सोशल मीडिया की वजह से होता है, उससे बचने की ज़रूरत है ताकि ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके. And what about peer pressure? Like whether it's about following trends, making career choices, or even choosing the weekend to where to spend. How can we as a student handle it better without feeling stressed? Peer pressure is real. Sometimes we make choices just to fit in, even when they don't align with who we are. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि वो अपने वैल्यूज़ को हमेशा ध्यान में रखें और वो ये भी ध्यान में रखें कि वो जो भी कर रहे हैं ये उनका इंटरेस्ट है या फिर ये दूसरों से प्रभावित होकर वो कर रहे हैं. क्योंकि पीयर प्रेशर से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है. और इस बेसिस पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसले कर सकते हैं. और आई गेस जो एक पीयर प्रेशर डेवलप होता है स्टूडेंट्स में, आप उससे भी बच सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. Lastly, let's talk about real life connection. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि उनके पास hundreds of friends हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, बट दे स्टिल फील लोनली. तो ऐसा क्यों होता है कि वो वैसा डीपर कनेक्शन वैसा बिल्ड नहीं कर पाते हैं? That's one of the most common concerns in the whole world. Digital interactions often lacks emotional depth. तो अगर हमें डिजिटल फ्रेंड की जगह पे या ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने की जगह पे अगर रियल लाइफ कनेक्शंस की अगर हम बात करें, तो हमें थोड़ा सा ठहरने और टाइम देने की ज़रूरत है. चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो या हमारे कलीग्स हो, ताकि हम उन्हें समझ सकें और एक बेहतर कनेक्शन उनके साथ बिल्ड कर सकें. बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं इस तरह से हम एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे और ये जो एक लोनलीनेस की जो फीलिंग है उससे भी हम बच सकते हैं. अगर आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें लोगों को समझने और सुनने की ज़रूरत है. हमें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों या कलीग्स हों. थोड़ा टाइम दें ताकि हम उन्हें समझें और एक बेहतर और रियल लाइफ कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम बिल्ड कर सकें. स्मॉल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस इज़ मोर इफेक्टिव दैन लाइक्स एंड कमेंट्स. तो फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना डेफिनेटली रियल लाइफ कनेक्शन को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. Thank you so much, ma'am, for sharing your such a valuable insights. Thank you so much. I'm sure our listeners जो हैं हमारे, उन्हें भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी and they feel connected. और अगर उन्हें कभी भी ऐसा फील होगा कि they are missing out, तो वो ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बात करने से सॉल्यूशन मिलता है हर चीज़ों का. So thank you everyone, and remember one thing, it's okay to ask for help because your mental health is also important as your grade and career. So this is end for the today's episode and we will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.